What is basically cancer and oral cancer क्या होता है? There are many types of the oral cancer. The most common is the oral squamous cell carcinoma. What are the causes of oral cancer? Like the new generation are much more inclined towards कि अच्छा हम vaping कर रहे हैं तो उसका कोई adverse effect नहीं है. It can cause cancer. Using a hard bristle toothbrush can cause gum recession. तो every 6 months is a time frame जिसमें आपने अपने dentist को visit करना है. क्या आपको पता है कि आपकी छोटी सी तशखीस आपको ओरल कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचा सकती है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वजीहा मज़हर एंड आई एम योर होस्ट फॉर द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस स्माइल लाउंज विद क्लियर पाथ ऑर्थोडोंटिक्स। और आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर, स्ट्रेस अवेयरनेस और द पावर ऑफ अलाइनर्स पर। April is a significant month because it marks the awareness of both oral cancer as well as stress, जो कि आपकी mental health को भी affect करता है। It's a perfect time to shed light on the most common yet underestimated diseases, जो कि बहुत सारे लोगों की जान भी ले सकते हैं। Today we are very honored to have a very special guest with us, Dr. Komala Karam. She is a oral maxillofacial surgeon and she is currently working as a consultant in 2 renowned hospitals of Lahore. Not only she is a very skillful surgeon, but she is also passionate about spreading awareness on crucial health topics like oral cancer. This episode is packed with valuable insights जो कि आपको मदद भी कर सकते हैं in saving lives. So let's get started. Assalamu alaikum, Dr. Komal. How are you doing? Walaikum assalam. Thank you for having me. I'm good and it's a great honor to be part of this important conversation. As you know, cancer is a very scary word. So, in layman terms, what is basically cancer and oral cancer क्या होता है? So, cancer is a disease in which there is abnormal and uncontrollable growth of any cell. Talking about the oral cavity, the oral cancer involves the structures which are present in the oral cavity. It may be a oral lining, salivary glands, tongue, lips, any structure which is present in the oral cavity. जो कैंसर इन स्ट्रक्चर से अराइज करते हैं हम उसको ओरल कैंसर कहते हैं। सो द कैंसर में ये टेंडेंसी भी होती है कि वो हमारी बाकी बॉडी में भी स्प्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। Can you shed some light on oral cancer types? There are many types of the oral cancer. The most common is the oral squamous cell carcinoma. Secondly, we have verrucous carcinoma. Then we have melanomas and the cancer which is arising from the bone, that are the sarcomas. So talking specifically about the oral cavity, there are other cancer as well, as I said, from the minor salivary glands and from the bone and the tissue lining. So these all are the cancer which are arising from the oral cavity. And then we have the other tumor as well which are not that much common, but commonly जब आप कैंसर की बात करते हो, most of the people just said about the oral squamous cell carcinoma because सब लोगों को वो ज़्यादा बेहतर पता है. What is a pre-cancerous stage and क्या oral cancer reversible है? नहीं, oral cancer reversible नहीं है. So it's always prevention is better than cure. So cancer reversible नहीं है, but कुछ pre-cancerous lesions हैं जो हमारी oral cavity में होती हैं, जिनको हम prevent कर सकते हैं from developing into the cancer. जैसे कि हमारे पास erythroplakia है, leukoplakia है, submucous fibrosis है, many more. But उनको हम किस तरह से prevent कर सकते हैं कैंसर में convert होने से? Early detection, regular follow-ups, उनकी timely biopsies. So अगर कोई भी प्री कैंसरस लीजन कैंसर में कन्वर्ट हो रही है और अगर वो अभी स्टेज 1 पे है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर है उस स्टेज से जो कि स्टेज 4 में चला गया। सो ऐसा कैंसर जिसको हम T1 पे या ट्यूमर की स्टेज 1 पे ट्रीट कर रहे हैं उसका प्रोग्नोसिस बेटर है एज कम्पेयर टू कि जो हम स्टेज 4 पे कर रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। So regular follow-ups, regular checkups are very important in that case. What are the causes of oral cancer? Okay, there are many causes of oral cancer. The most important is tobacco, जिसको हम तंबाकू नोशी कहते हैं. उसके अलावा छालिया, पान, गुटखा, अल्कोहल कंजम्पशन. Then we have genetic mutations और immunosuppression, जिसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है. ये सारी चीज़ें क्या है ओरल कैंसर करवाती हैं. टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट टोबैको, तो टोबैको क्या करती है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में 2 जीन्स होते हैं.
One is good gene and one is bad gene. So the good gene is P53 tumor suppressor gene and the bad gene is RAS oncogene. Oncogene is the gene जो कि ट्यूमर को प्रमोट करता है। जब टोबैको जाके म्यूटेशन करवा देते हैं इन दोनों जीन्स की, तो क्या होता है कि हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि गुड जीन है उसका लेवल कम हो जाता है और हमारा जो बैड जीन है दैट इज रैस ऑन्कोजीन वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो अनकंट्रोलेबल जो कम है ट्यूमर सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली, हमारा अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो इसके रिस्क को इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा बीटल नट, पान, समटाइम क्या होता है कि पान के अंदर ये क्या करती है, जो ग्लास के फाइबर्स होते हैं उसको बहुत माइन्यूटली ग्राइंड करके ऐड किया होता है। हमारी ओरल कैविटी में ना ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो पान च्यूइंग करते हैं तो वो एब्रेजन्स करवाते हैं म्यूकोजा की, और जब वो एब्रेजन्स होती है तो वो बहुत रैपिडली ब्लड जो है ना एब्जॉर्ब कर रहा होता है उस इंग्रेडिएंट को। ठीक है, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फॉरन जाके आपको जो एडिक्शन के जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो पेशेंट को बहुत जल्दी हो रही होती है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इस चीज को लीड कर देते हैं। अदर देन दैट, जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं डिफरेंट जो कि टबैको में, वेपिंग में और शीशा में होते हैं, दीज आर द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, नाइट्रोसामाइंस एंड दीज आर मेनी मोर लाइक वोलेटाइल हैवी मेटल्स जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो सारी कैंसर्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। Since we talked about the tobacco is one of the main reasons in causing cancer. So, do you think that vaping or shisha they are safe alternatives to smoking cigarettes? No. Basically, there is ongoing research on that. There is a link between the e-liquid and shisha कि वो कैंसर कॉज करते हैं, बिकॉज जो e-liquids हैं उनमें सेम कंपाउंड्स हैं लाइक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, देन इट हैज वोलेटाइल मेटल्स, लेड एंड आर्सेनिक एंड देयर इज अ नाइट्रोसामाइड जो कि सारे इसके फ्लेवर्ड में यूज किए जाते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग मेटल्स हैं। ठीक है, देन शीशा में भी जो फ्लेवर्स और जो लिक्विड यूज किए जाते हैं वो भी कैंसर कॉजिंग है। सो that is not a safe alternative to that, as people think like the new generation are much more inclined towards कि अच्छा हम वेपिंग कर रहे हैं तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, it can cause cancer. अभी आपने बात की कि younger generation is more inclined towards vaping and they also take pride in saying कि हम तो smoking नहीं करते, हम तो vaping करते हैं। ठीक है, तो how can we like prevent it and इसको कैसे खत्म किया जाए? The only thing is make your mind कि मैंने इसको क्विट करना है। ठीक है, अगर आप अपना माइंड बना लेते हो कि मैंने इसको क्विट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडली सम पीपल डू नीड हेल्प इन दैट, क्योंकि आपको इसमें आपकी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। यू ऑल्सो नीड कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर बिकॉज इसके विड्रॉल्स इफेक्ट भी आते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सम सेफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि हम टेम्परेरी यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं निकोटिनिक पैचेस आती हैं, लोजेंजेस आती हैं, गम्स आती हैं। अदर देन दैट के डॉक्टर्स के पास आप कंसल्टेशन के लिए जाएं तो वो आपको सेफ ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस भी देते हैं, और देयर आर सम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर दैट एज वेल कि आप अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं टुवर्ड दैट तो उसके लिए आपके पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इवन पाकिस्तान में बहुत अच्छे सेंटर्स मौजूद हैं। आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ से हेल्प लें और इसको क्विट करने की कोशिश करें। ओके, एंड क्या निकोटीन पाउचेस या निकोटीन गम्स दे आर अ सेफर थिंग टू यूज फॉर लॉन्ग टर्म? नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, क्योंकि जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप टेम्परेरीली उसको यूज कर सकते हैं। एंड शुड इट बी ओनली प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर या फिर खुद से भी आप यूज कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे पाकिस्तान में वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपने उसको यूज़ करना है और आपने अपना माइंड बना लिया कि यार, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द टेम्परेरी यूज़, लेकिन इट्स बेटर कि आप एक दफ़ा डॉक्टर की कंसल्टेशन भी ज़रूर लें। A lot of serious talk has happened, so now let's begin with our fun segment, which is fact or fiction. Are you ready? Yeah. Okay. Using a hard bristle toothbrush can cause gum recession. Fact. Achha, there is no link between human papillomavirus and oral cancer. It's a fiction because there is a strong correlation between oropharyngeal cancer and human papillomavirus. That is a virus which affects the back of your mouth. So oropharyngeal region is specifically in a layman term is a throat. So जो human papilloma virus है वो आपको throat का कैंसर करवा सकती है। अच्छा,
oral cancer can only affect people who are 50 plus. No, it's a fiction because oral cancer can occur in both even in young adults और old age में भी हो सकता है. So there are different type of cancer. कुछ cancers की type young लोगों में common है, कुछ old में common है. Bleeding on flossing means it's a sign of cancer. No, it's a fiction because bleeding बहुत सारी reasons की वजह से हो सकती है. The most common is gingivitis जिसको हम inflammation of gums कहते हैं. Then we have periodontitis और अदर कंडीशंस जो कि ब्लीडिंग करवा सकते हैं. डायरेक्टली द ब्लीडिंग जो है वो कैंसर से रिलेटेड नहीं है. येस, देयर आर सम ब्लड कैंसर्स जिसमें जो है ब्लीडिंग इज अ साइन ऑफ अ कैंसर कि अच्छा कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में. बट इवन ऑन फ्लॉसिंग अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये ब्लीडिंग सिर्फ कैंसर की वजह से हो रही है. क्यों होती है ब्लीडिंग फ्लॉसिंग के बाद? ओके, जब आपको ऑलरेडी जिंजिवाइटिस है, गम डिजीज है, गम स्वोलन है, तो जब आप फ्लॉसिंग कर रहे होते हो तो आपको उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है. अदर देन दैट आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आप बहुत फोर्सफुली कर रहे हो तो भी आपको क्या है कि वो ब्लीडिंग हो सकती है. Mouth washes can cause cancer. Is it true? No, it's a fiction. Mouth washes are even good for health, but for this limited time duration. Not कि आप उसको excessively use कर रहे हैं और there is a proper dilution कि आपने उसको किस concentration में आपने use करना है, तो ये कैंसर नहीं करवाते. Are pregnant women at more risk of oral cancer? No, it's a fiction because there are some benign tumor जो कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, बट नॉट स्पेसिफिकली कि कैंसर के होते हैं. अगर हम इसकी बात करें तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और आपकी अगर आप उसके साथ अपनी हाइजीन ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे होते तो दीज रिस्क कैन लीड टू दी benign tumors, not the cancer. जेंडर में कौन सा जेंडर इज मोर प्रेवलेंट टुवर्ड्स ओरल कैंसर? Specifically, अगर oral cancer की बात की जाए, it is more common in males because they are more addicted toward the tobacco and alcohol consumption. And there are some cancers जो कि females में भी common है, but mostly the trend is inclined towards the male. Mostly oral cancer is more common in males. इतनी awareness कम क्यों है, इतनी लिमिटेड क्यों है, knowing that it is one of the most common diseases? इतनी ज़्यादा like limitation क्यों है awareness? Because की lack of education about the oral cancer. बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है about the oral cancer, लोगों को पता ही नहीं है और ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते. ठीक है, एज ओवरऑल टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के पाकिस्तान में लोग डेंटिस्ट के पास जाना प्रेफर नहीं करते. ठीक, क्योंकि उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि कितना ज़रूरी है ओरल हेल्थ हमारे लिए. आपको ये पता है कि जो ओरल कैंसर है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द पाकिस्तान. टॉकिंग अबाउट द कैंसर्स इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान एंड टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड तो पाकिस्तान में ओरल कैंसर 3rd नंबर पे आता है. ठीक है, सो अगर हम इसकी अब फिर भी लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है और सेकेंडली यहाँ पे लैक ऑफ कैंपेन्स हैं अबाउट द ओरल कैंसर. हमारे लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको नहीं पता कि ओरल कैंसर क्या है. तो एज अ डॉक्टर ये और हमारे एज अ डेंटिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी कैंपेन्स करें जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस दें अबाउट द ओरल कैंसर. सो दिस पॉडकास्ट इज आई एम ज्वाइनिंग दिस स्पेशली कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि ओरल कैंसर है तो उसके लिए आपने जाना है. आपके मुंह में कोई छाला है, कोई अल्सर है, कोई ऐसी लीन है जो कि 2 हफ्ते से रिजॉल्व नहीं हो रही, तो प्लीज गो टू योर डेंटिस्ट. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि लोग तभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब उनको दर्द होता है. Yes. एंड जरूरी नहीं होता कि कैंसर में आपको दर्द हो तभी आप जाएं. जब आपको दर्द होता है तब इट्स लाइक दैट स्टेज जो कि क्रॉस हो चुकी है. Yes. तो या लाइक इट्स पेनलेस एट फर्स्ट बट वो आपका डेंटिस्ट ही डिटेक्ट कर सकता है. Yes. So कैंसर इज अ साइलेंट किलर. या ठीक है, तो उसमें पेन नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को पता ही तब चलता है कि जब वो कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुका होता है. या पेशेंट के कभी कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारे दांत हिल रहे हैं, हमें नमनेस हो रही है, हमें यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा अपने लिप्स पे. तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे वो ऑलरेडी कैंसर काफ़ी स्प्रेड कर चुका होता है क्योंकि वो पेनलेस है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग तभी जाते हैं कि जब उनको पेन होती है. कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो फर्दर कैंसर की तरफ लीड कर सकती हैं? There are many pre-malignant lesions and pre-malignant conditions.
फर्स्टली देयर इज एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया एंड सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। एरिथ्रोप्लेकिया में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट करते हैं। सो एरिथ्रोप्लेकिया क्या होता है कि एक रेड पैच बन जाता है आपकी माउथ में, जो कि बहुत ड्यू टू हाई वेस्कुलैरिटी होती है उसकी, और उसके ऊपर एब्रेजन्स हुई होती है आपकी ओरल म्यूकोसा को, अगर नॉर्मल टर्म में कहा जाए। अदर देन दैट हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया, उसमें व्हाइटिश रीजन आती है, व्हाइट कलर का होता है। और ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि आप जो लोग पान, छालिया और अरिका नट्स स्पेसिफिकली खाते हैं, उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है म्यूकोसा की, और वो क्या होता है कि अपना मुंह नहीं पूरी तरह खोल पा रहे होते, उनकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो जाती है। ये भी एक अर्ली साइन है कि जो कैंसर में बाद में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हैं जो कि अगर हम उनकी अर्ली डिटेक्शन कर लें और इनका रेगुलर फॉलोअप रखें तो हम इसको कैंसर में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, या फिर उसको T1 पे ही ट्रीट कर सकते हैं। क्या सारे कैंसर बॉडी में स्प्रेड करते हैं? यस, टॉकिंग अबाउट कैंसर, तो सारे कैंसर जो है वो बॉडी में स्प्रेड करने की टेंडेंसी रखते हैं, बट कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, लोग उसको कोरिलेट कर रहे होते हैं कि बिनाइन ट्यूमर जो है वो कैंसर है, बट नहीं, कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि स्प्रेड नहीं करते, वो लोकली एग्रेसिव होते हैं उसी एरिया पे, तो वो बॉडी में स्प्रेड नहीं करते। ठीक है, तो लाइक व्हाट आर बिनाइन ट्यूमर्स एंड व्हाट आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स? तो अगर हम आम अल्फाज में कहें तो एक होती है जड़ों वाली रसौली, एक होती है बगैर जड़ों वाली रसौली, जो कि नॉर्मली लोग इस टर्म को यूज करते हैं। तो जड़ों वाली रसौली जिसको वो कहते हैं, दैट इज कैंसर, जो कि बॉडी में स्प्रेड भी करता है और वो बहुत एग्रेसिव होता है, एंड दैट इज मैलिग्नेंट। दैट इज मैलिग्नेंट। ठीक है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं कुछ लोकली एग्रेसिव होते हैं, लेकिन उनमें ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो बॉडी में स्प्रेड करें, वो उसी एरिया में रहते हैं और वहाँ पे जो है वो काफी डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, कैन बिनाइन ट्यूमर बी कन्वर्टेड इनटू अ मैलिग्नेंट ट्यूमर? नॉट ऑल बिनाइन ट्यूमर्स, लेकिन कुछ बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो बाद में लेटर ऑन कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप अर्ली डिटेक्शन करवाते हैं अपने बिनाइन ट्यूमर्स की, तो उस टाइम पे वी आर एक्चुअली स्टॉपिंग देम फ्रॉम बिकमिंग अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। यस, जब भी आप कोई अर्ली डिटेक्शन किसी चीज की करवा लेते हैं तो आप बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट से बच रहे होते हैं, आइदर इट्स अ कैंसर, आइदर इट्स अ बिनाइन ट्यूमर। सो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ सिनेरियोस। ठीक हो गया। एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट के T1 है और एक T4 है, तो T1 is basically stage 1 of cancer and T4 is basically the last stage of cancer. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी stage 1 है? Like what are the signs and symptoms of the stage 1 cancer? कि वो देखते साथ ही बंदा फौरन चला जाए डॉक्टर के पास कि I'm having something, yes, I'm having some issue. ओके, बेसिकली पेशेंट को नहीं पता चल सकता कि उसकी कौन सी स्टेज है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर उसके मुंह में कोई अल्सर है या कोई छाला है जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया, तो उसने डेंटिस्ट को जरूर चेक करवाना है, बिकॉज एक अलार्मिंग साइन है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। सो 2 वीक्स एक टाइम लिमिट है किसी भी ओरल के अल्सर के लिए। सेकेंडली, कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट खुद ही नहीं बता सकता कि यार ये मेरा कैंसर किस स्टेज पे जा रहा है, वो आपको डेंटिस्ट या मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही बता सकते हैं। सो उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए आपके रेगुलर फॉलोअप्स और रेगुलर चेकअप जरूरी है। Is there a method of self examination जिसमें वो खुद अपना चेकअप यानी खुद अपने आप को देख सकें कि वो उनको कुछ हो रहा है या कुछ इस तरह का, या फिर डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉट एग्जैक्टली कि वो खुद अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम साइंस जो कि सिर्फ एक डॉक्टर इवेलुएट कर सकता है। सेकेंडली, आप ठीक है, आपको कोई अल्सर हुआ है, कोई चेंजेस हैं ओरल कैविटी में, आप किसी लोग को कह सकते हैं कि अच्छा यार देखो मेरे मुंह में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, या आप खुद उसको मिरर में इवेलुएट कर लो कि यार मेरे मुंह में क्या, बट आपको उसको देखने से आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैंसर है या कोई अर्ली साइन है। सो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डेंटिस्ट और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, क्योंकि जो साइंस वो पिक कर सकते हैं वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। अच्छा, कितने ऑफनली आपको रेगुलर चेकअप्स या रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाना चाहिए टू अ डेंटिस्ट? ऑलमोस्ट एवरी 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ्स पे एक अगर फर्ज करें कोई चीज आपको डेवलप हो रही है तो हम उसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरी 6 मंथ्स इज अ टाइम फ्रेम जिसमें आपने अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। How do you think stress impacts oral health and can it cause cancer? Obviously, stress management is important for oral health. Talking specifically about the oral health related to stress is कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं
द फर्स्ट थिंग इज कि वो क्लेंचिंग करते हैं अपने माउथ की, जिसमें क्या होता है वो दांतों को कॉन्टिन्यूसली क्लेंच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वॉर्ड ऑफ हो जाते हैं टीथ, या फिर उनके जो मसल्स हैं वो स्पैज में जा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो रात के टाइम क्लेंचिंग कर रहे होते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनका जो मसल है वो सोर हुआ होता है, लाइक दे आर अनएबल टू ओपन देयर माउथ। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस वो अपनी ओरल हाइजीन की केयर नहीं कर रहे होते। अदर देन दैट कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल चेंजेस बहुत आ रहे होते हैं बॉडी में। जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो भी हमारी ओरल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही स्ट्रेस में जाता है इंसान तो कॉर्टिसोल लेवल जो एक हार्मोन होता है बॉडी में वो इंक्रीज कर जाता है, जो आपकी ओरल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को भी डिक्रीज करते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तो इट मे लीड टू दी अदर थिंग्स, अदर एडवर्स डिजीजेस, बट नॉट एज सच स्पेसिफिकली कि वो आपको स्ट्रेस में तो आपको कैंसर हो जाए, नॉट दैट। लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे, अपनी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, अगर कोई अल्सर बन गया तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो वो एक चीज़, एक फैक्टर है। बट स्पेसिफिकली कि स्ट्रेस कैंसर करवा देगा ये लाइक फिक्शन है। ठीक है। सोशल एंजाइटी इज द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्पेशली आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे हर बंदा फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, तो सोशल एंजाइटी इज एट पीक। सो हाउ डू यू थिंक aligners can help in reducing the social anxiety? So basically लोग क्या है conscious है about their aesthetics and their teeth alignment. So अगर बहुत सारे लोग अपने इस तरह से भी करते हैं कि वो गैदरिंग में नहीं जा रहे होते हैं, वो इतना अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं बिकॉज कि अच्छा हमारी एस्थेटिक अच्छी नहीं है, और ये एक्चुअली लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। सो फॉर दैट आई थिंक अलाइनर्स जो है एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि आप उसको पहन के आप सोशली अपना इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से, क्योंकि कोई मेटल डिस्प्ले नहीं है। अदर देन दैट इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू ट्रीटमेंट एज वेल। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी टीथ अलाइनमेंट भी हो रही है, आपकी एस्थेटिक भी बेहतर हो रही है, और उसके साथ आप अपनी सोशल गैदरिंग्स में भी जा सकते हैं। We enjoyed our last segment so much. So now here is another fun segment, which is a rapid fire round on this or that. Cigarettes or smokeless tobacco? None. Power nap or all nighter? I guess power nap. Okay. Yoga or gym workout? I think both. Flossing or brushing your teeth? Both. Aligners or traditional braces? Aligners, and specifically clear path aligners. Okay, now let's shift gears a bit and talk about your any memorable experience with a patient as an oral maxillofacial surgeon. I remember कि मुझे एक पेशेंट ने कहा था कि you are like my daughter, कि आपने मेरी बीवी की लाइफ बचाई है। So there are lot of incidents जो कि होते हैं हमारे साथ about the patient, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में रह जाती है। So उनकी वो जो स्माइल होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Since you are an oral maxillofacial surgeon, आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा केसेस से डील करना पड़ता होगा on daily basis. How do you cope up with those cases, and what made you choose such a difficult period? So when I was in my third year BDS, I was inspired by the work of my seniors. Secondly, ये मेरी मदर का ड्रीम था कि मैं maxillofacial surgeon बनूं. Thirdly, कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि उनको उस मिजरी से निकालने के लिए. So it's a blessing कि मैं उनमें से एक हूँ कि जो उसमें उनकी मदद कर रही हूँ कि how to deal with this thing. Dr. Komal, since we are coming towards the end of our podcast, तो अगर आप कोई mic drop smile tip देना चाहें तो what will it be? So stress और anxiety हर किसी की लाइफ में है. So try to smile more or make your aura positive. I think that's a perfect tip and the perfect concluding note to this podcast. Thank you so much, Dr. Komal, for the amazing session. I think आज जितनी भी हमने बात की, जितनी भी हमने medical facts discuss की है और oral cancer जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में हमने जितनी भी discussion की, it was really productive. And I think हमारे एंड पे यही चीज़ बहुत मैटर करती है कि जितनी ज़्यादा आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे उतने ज़्यादा यू कैन कंट्रीब्यूट इन सेविंग लाइव्स एज वेल, नॉट ओनली एज डॉक्टर्स बट इवन सिंपल ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन लाइक स्प्रेड अवेयरनेस। एंड वो चीज़ जो आज हमने डिस्कस की है 10 लोगों में भी और स्प्रेड करेंगे तो इट विल रियली हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डिजीज इंशाल्लाह। सो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और हमेशा याद रखें कि आपकी ओरल हेल्थ इज़ द गेटवे टू योर ओवरऑल हेल्थ।
तो हमेशा अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।